इंटरमीडिएट नताइज पर तलबा तंजीमों के एहतिजाज का सिलसिला नहीं रुक रहा है। तलबा तंजीमों ने सुंदरिया विज्ञान केंद्र से टैंक बंड मुजस्समा अम्बेडकर तक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने एहतिजाजी तलबा को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तलबा तंजीम PDSU, AISF, DYFI के कारकुनों ने एहतिजाज किया। उन्होंने वजीर तालीम को काबीना से बरतरफ करने और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को मुअत्तल करने और महलूक तलबा के वालिदैन को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। అమరవీరుల ఫోటోలతో ర్యాలీ జరుగుతుంది. కానీ ర్యాలీ జరగక ముందుకే కనీసం ఒక ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా హోటల్ కాడికి వచ్చి టీ తాగుతుంటే అరెస్ట్ చేయడం చాలా ప్రజాస్వామ్యం కూని చేస్తున్నారు. మంత్రిని భర్త చేయాలి. కేసీఆర్ ఇంతమంది కూడా ఎవరికి కూడా చర్యలు తీసుకోలేదు. వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కార్యదర్శిని అరెస్ట్ చేయాలని, గ్లోబల్ సంస్థ రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈ విద్యాశాఖ మంత్రిని వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని విద్యాసంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా దున్నపోతు మీద వ్యవహరిస్తుందో. इस बीच बीजेपी कारकुनों ने आज भी तेलंगाना इंटरमीडिएट नताइज मामले पर एहतिजाज किया। बीजेपी ने 2 मई को रियासत बंद की कॉल दी है। बीजेपी कारकुनों ने पार्टी के रियासती सदर लक्ष्मण की भूख हड़ताल को जबरदस्ती खत्म करने की मजम्मत की और इस मामले पर बीजेपी सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने टैंक बंड मुजस्समा बाबा साहब अम्बेडकर पर एहतिजाज किया। पुलिस ने एहतिजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उधर ABVP कारकुनों ने CM कैंप ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने कारकुनों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह रहे कि इंटर नताइज पर अब तक 26 तलबा ने खुदकुशी की है। విద్యార్థి రంగం తెలంగాణ ఉద్యమంలో వాళ్ళ త్యాగాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకుంటే అదే విద్యార్థులను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్యాయం చేస్తా ఉన్నారు. తెలంగాణలో నిరంకుశ పాలన కొనసాగుతుంది. ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను ఈ ప్రభుత్వం కాలరాస్తుంది. అసలు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు అసలు ఉన్నాయా అనే ఒక అనుమానం కలుగుతుంది. మేము శాంతియుతంగా ఆందోళన కొనసాగిస్తూ ఉంటే రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో ఇవాళ మేము కార్యక్రమాన్ని చేపడుతుంటే ఇవాళ మమ్మల్ని అక్రమంగా అరెస్టు చేయడం ఏదైతే ఉందో ఇది దురదృష్టకరమైన విషయం. ఇది ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాయడమే. నిరసన తెలిపేటువంటి హక్కు ఎవరికైనా ఉన్నది. కానీ ఏ రకంగానైనా పోలీసులు దౌర్జన్యంతో ప్రభుత్వం యొక్క ఉన్నటువంటి అండన ఉండడం ఇది ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం. మేము ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తాం. ఎంతవరకైతే మంత్రి జగదీష్ రెడ్డిని బర్తరఫ్ చేయరో అంతవరకు ఈ ఉద్యమం ముందుకు పోతూనే ఉంటుంది. అలాగే భవిష్యత్తులో సిట్టింగ్ హైకోర్టు చేరుతో న్యాయ విషయాన్ని చేయించాలని, అదేవిధంగా అన్ని విధాలుగా ఎవరైతే దోషులు ఉన్నారో వాళ్ళను శిక్షించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాము. భారతీయ జనతా పార్టీ రేపు కూడా నిరసన ప్రదర్శన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఎల్లుండి 2వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తమైనటువంటి బంద్ కార్యక్రమాన్ని బీజేపీ పిలిపించింది. ప్రజా సంఘాలు, మిగతా సంఘాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు ముందుకొచ్చి వాళ్ళు మా అందరికి కూడా అన్ని విధాలుగా అండగా ఉండాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. उधर कांग्रेस लीडर A रेवंत रेड्डी ने इंटर नताइज में बेकायदगियों के जिम्मेदार इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और महलूक तलबा के वालिदैन को एक्स ग्रेशिया देने और तमाम तलबा के जवाबी पर्चों को ऑनलाइन करने की मांग की। గ్లోబరీనా సంస్థను తక్షణమే క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి లోపలేసి ఈ రీవెరిఫికేషన్ రివాల్యుయేషన్ నుంచి తప్పించాలి. చనిపోయిన విద్యార్థులందరూ కూడా ప్రతి కుటుంబానికి 50 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. అదేవిధంగా దాదాపుగా 10 లక్షల మంది విద్యార్థుల యొక్క జవాబు పత్రాలను ఆన్లైన్లో बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट అందుబాటులో పెట్టాలి. तेलंगाना आने के बाद जो विजय राव आंध्रा के ये और अपना राजू साहब भी आंध्रा के ये मतलब अपना एमसेट, अपना सिंगरेनी, अपना जो एसएससी बोर्ड, जो अपना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सब आंध्रा वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए. मतलब लाखों का डाटा किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में दे रहा है. बच्चों आंध्र प्रदेश के कोई डाटा प्राइवेट कंपनी में है बोल के उनको केस लगाया, अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा. ये रूल के हिसाब से किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में किसी का डाटा नहीं. मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिलों का अमल जारी है। मानू में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा की सहूलत के लिए ख्वाजा शौक हॉल
उर्दू मस्कन खलवत नजदीक चार मीनार में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तलबा व तालिबात और सरपरस्तों की सहूलत के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के असातिज़ा व जिम्मेदारान ने उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की तफसील पेश की, दाखिलों के लिए तलबा की रहबरी की। रेस्पॉन्स भी मिला आज। ये रेस्पॉन्स देखो, हमारा मानो उर्दू यूनिवर्सिटी का ये लोकल बच्चा, हैदराबाद बच्चा को ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अच्छा तरीके से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें तकरीबन रियासतों की लड़कियां बहुत खुशौक़रम सेहतमंद माहौल में यहाँ रहती हैं और अपनी तालीम जारी रखती हैं। डे केयर सेंटर जिसमें ऐसी ख़वातीन को मौका दिया जाता है जहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं लेकिन वो अपनी तालीम जारी रखना चाहती हैं, तो वो अपने बच्चों को वहाँ लाकर डे केयर में रखती हैं, उनकी देखभाल होती है और वो लड़कियाँ पीजी कर रही हैं या पीएचडी कर रही हैं। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन भी हैं। फॉर्म है उसकी फ़ीस में और जो उनके एडमिशन फ़ीस है इसमें भी कमी रखी गई है बनिस्बत लड़कों के जो अखराजात होते हैं। इसमें का अमल चल रहा है, तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, हिस्सा लें, अपने अतराफ़ व कनाफ में देखें कि तालीम से जो लोग दूर हैं उन्हें तालीम से जोड़ें और इस तहरीक को आगे से आगे बढ़ाएं। सही काउंसलिंग करें, सही रहनुमाई मिली, जिससे मेरी बच्ची का एडमिशन इस्लामिक स्टडीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। तेलंगाना के वजीर अखिलियती बहबूद के ईश्वर ने माह रमजानुल मुबारक की आमद के सिलसिले में सरकारी सतह पर इंतजामात का जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो माह रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद के करीब खुसूसी सफाई के इंतजामात के अलावा बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाएं। इस इजलास में मुशीर बराए अखिलियती बहबूद ए.के. खान, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद दाना किशोर, डीसीपी ट्रैफिक के बाहू राव, शहनवाज कासिम, डायरेक्टर मोहम्मद अखिलियती बहबूद के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत की 832 मसाजिद में रमजान गिफ्ट की तकसीम के अलावा इन मसाजिद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। GHMC हुदूद में 448 मसाजिद में दावत इफ्तार और तोहफा रमजानुल मुबारक की तकसीम होगी। बाकी 32 अजला में 367 मसाजिद में दावत इफ्तार के एहतमाम के अलावा रमजान गिफ्ट पैक की तकसीम अमल में लाई जाएगी। बरतानवी मलिका एलिजाबेथ दोम की फर्जंद सोफी हेलन ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी S.K. जोशी से सेक्रेटरीट में मुलाकात की। तेलंगाना और हुकूमत बरतानिया के दरमियान जारी तिजारत और सरमायाकारी पर तबादुल ख्याल किया गया। रच्चाकोंडा के इलाका बूमला रामारम में बावली से 3 दिन में 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। हाजीपुर में खौफ का माहौल पैदा हो गया। गुज़िश्ता रोज शिरावनी कत्ल वाकया अभी ताजा ही था कि पुलिस को मनीषा की नाश दस्तियाब हुई, जो तकरीबन 1 माह कबल लापता हो गई थी। इस वाकये की इतला के साथ ही कमिश्नर रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बूमला रामारम हाजीपुर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने एक मुश्तबा मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान पूछताछ के दोनों लड़कियों की इस्मत रेजी और कत्ल का एतराफ किया। इसी इलाके में कल्पना नामी लड़की भी चंद साल पहले लापता हो गई थी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। ఈ బాడీ ఒకటి రికవర్ కావడం జరిగింది. ఒక బాడీ ఈ బావిలో ఒక కార్నర్లో ఇంకో బాడీ ఉంది. దాంతో ఫ్యూమర్ బోన్ బయటపడడంతో దాన్ని ఈరోజు ఎగ్జూమ్ చేశారు. ఇది ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్స్, టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెవెన్యూ అఫీషియల్స్, ఆర్డీఓ, తహసీల్దారు యాజ్ వెల్ ఇంకా మిగతా వీళ్ళందరూ వచ్చారు. వీళ్ళందరి ప్రెసెన్స్లో మనం దీన్ని ఎగ్జూమ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంతో మనకు స్కూల్ బ్యాగ్ ఒకటి ఆ బాడీతో పాటు బయటపడింది. ఈ స్కూల్ బ్యాగ్లో ఐడి కార్డు, అమ్మాయి పేరు మనీషా అని ఉంది. షీ ఈస్ 18 years old. అండ్ ఈ అమ్మాయి KLR కాలేజ్ కేసర్లో చదువుతుంది. ఇదంతా ఉంది. సో ఈ బాడీ హెస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. షీ ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ హాజీపూర్ విలేజ్ అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు మల్లేశ్వర్. जिला यादारी भूंगीर के हाजीपुर में कशीदगी देखी जा रही है। श्रावणी कत्ल के मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी के नाम पर उधर
बरहम अवाम ने हमला कर दिया और उसके घर को नजर आतिश कर दिया और मकान के एक हिस्से को मुनहदिम कर दिया। पुलिस को शिरावनी, मनीषा और कल्पना की मौत में श्रीनिवास के मुलविस होने का यकीन है। अवाम ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अवाम को पुरअमन रहने की अपील की गई है। हैदराबाद में जायदाद के लिए एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी सौतेली मां का गला काटकर कत्ल कर दिया। मादनापेट हो या बोया बस्ती से ताल्लुक रखने वाले यादिया को 2 बीवियां थीं। पहली बीवी का बेटा श्रीकांत पुलिस कांस्टेबल बताया गया है। 2 माह कबल यादिया की मौत हो गई। यादिया ने मरने से पहले अपनी दूसरी बीवी के नाम कुछ जायदाद की थी, जिस पर पहली बीवी के बेटे श्रीकांत को ऐतराज था। जायदाद के मसले पर शुरू से ही इनमें झगड़े हो रहे थे। आज श्रीकांत ने अपनी सौतेली मां के घर पहुंचकर उसका गला काटकर कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गया। मादनापेट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मकतूला के बच्चों ने श्रीकांत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। సార్ మా అన్న వాష్రూమ్కి వెళ్ళిండు 7:10కి. సో వాడు కారం తీసుకొని వచ్చిండు సార్. కారం తీసుకొని వచ్చి మా మమ్మీ ముఖాన్ని కొట్టినాక మా మమ్మీ కళ్ళలో కారం పడితే ఉడకనీకి రాక కొంచెం ఉడకనీకి ట్రై చేసింది. అక్కడ పైన చెట్టు తట్టి పడిపోగా వాడు కొడవలతో నరికేసిండు సార్. మరి మీ పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ ఇంత ఘోరంగా తీసుకుంటారా సార్? మీరు ఈరోజు ఎన్కౌంటర్ చేయకపోలే సార్. ఈ రోజుకి నొప్పటి నంబర్ సార్ పోలీస్ వాడిని. నేను ఖలీజ్ పోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని వాడు నాకు కళ్ళ ముందే ఎన్కౌంటర్ ఈ రోజు ఎన్కౌంటర్ వాళ్ళాడు. 11 డాడీని చంపడానికి వస్తే అక్కడికే వచ్చిండు. ఇక్కడనే ఉన్నాడు 10 years నుంచి. మళ్ళా తర్వాత ఇక మొన్ననే ఫిబ్రవరిలో డాడీ చనిపోయిండు. ఇప్పుడు మమ్మీ చనిపోయింది. వాడిని చంపేసిండు వచ్చి. ఫస్ట్ వైఫ్ కొడుకు అంటే మా పెద్దక్క, ఆమె కూడా సొంత అక్క చెల్లెలు. కానీ వాని మాత్రం ఇవ్వద్దు సార్. AR कांस्टेबल गोशमेल ग्राउंड्स। हैदराबाद के इलाका निरडमिट में 21 साल तालिब इल्म साहिल ने खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया गुज़िश्ता रात देर गए पेश आया। बताया जा रहा है कि साहिल जेईई मेंस इम्तिहान लिखा था और उसने CBSE के 12वीं का भी इम्तिहान लिखा है। बताया जा रहा है कि वो इम्तिहान में नाकामी के खौफ से परेशान था। साहिल ने अपने वालिद की पिस्तौल से खुद की पेशानी पर गोली चलाई। निरडमिट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा को उर्दू रस्मुल खत से वाकिफ करवाने के लिए उर्दू घर मुगलपुरा में आज से 2 मई तक सह रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में मारूफ स्कॉलर तनवीर खुदानुमाई अपनी तहकीक के जरिए वज़ा करदा उर्दू रस्मुल खत सीखने के मुनफरिद तरीके को तलबा व नौजवानों से वाकिफ करवा रहे हैं। ज़बान का वर्कशॉप नहीं है, 3 ज़बानें हैं इसमें, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, लेकिन हम शुरू उर्दू से करेंगे। इसमें स्क्रिप्ट तीनों का एक ही है। अगर कोई उर्दू सीख लेता है तो फारसी भी सीख सकता है, अरबी सीख ले सकता है। सिंधी का भी यही स्क्रिप्ट है, तुर्की का भी पहले यही स्क्रिप्ट था। एक स्क्रिप्ट सीखने से तमाम तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। अरबी में 28 हरूफ हैं और फारसी में 4 हरूफ इजाफा हैं। 28 और 4 32 होते हैं। इससे हटके और 5 हरूफ इजाफा उर्दू में होते हैं। 5-6 इख्तिलाफ इसमें। तो आपको सिर्फ जो फ़र्क है वही सीखना है। बाकी 28 हरूफ तो अरबी हैं। हम लिखाने के साथ पढ़ाने का एहतमाम कर रहे हैं, लिखना और पढ़ना। हम ये बतलाना चाहते हैं कि अरबी सीखने के लिए सिर्फ 28 शक्ल याद रखना है, बस ख़त्म। याम जाहिलियत से लेके आज तक कैपिटल स्मॉल लेटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। हमने कॉन्सेप्ट ईजाद कर दिया है। सिर्फ कैपिटल लेटर, असली हरूफ याद रखना है, दूसरा कुछ याद रखना नहीं है। जोड़ों की जो तकलीफ जो बच्चों के लिए मुश्किल होती है, जॉइंट करना सबसे मुश्किल है। हमने उस कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया है। बगैर कॉन्सेप्ट के जॉइंट बताएंगे। तमाम ज़बानों से सबसे ज़्यादा ज़बान अरबी, फ़ारसी, उर्दू आसान है। सारी ज़बानें मुश्किल हैं। प्रैक्टिकली ऑन पेपर कापी कलम हाथ में लेने के बाद में बच्चा, बड़ा, टीचर, उस्ताद, सीनियर, जूनियर, मर्द, औरत सब 1 घंटे में इकरार करेंगे कि सबसे ज़्यादा आसान ज़बान ये है। और हम शाम तक खुशखत बना देंगे, लाइक कंप्यूटराइज राइटिंग। अलिफ ज़बर आ, एक बार अलिफ बोलने लगाते हैं, फिर अलिफ ज़बर बोलने लगाते हैं, फिर आ बोलने लगाते हैं। ये 3 का कॉन्सेप्ट भी हमने निकाल दिया। डायरेक्ट हम आ, ई, ऊ कैसा है हम वो बताएंगे। इस बोझ को कम कर दिया गया है कैपिटल स्मॉल लेटर्स के ज़रिए से। और हमने इसमें 12 खड़ी अरबी में ईजाद की है।
जो फारसी में भी काम आती है, उर्दू में भी काम आती है। ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं रहा, सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में बारह खड़ी है, यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी नहीं है, अरबी भी नहीं है। ये हमने इसको ईजाद किया है। तमाम स्कूल सिखाने के वास्ते हैं, आओ सीख लेके जाओ, आओ सीख लेके जाओ। हम सीखो और सिखाओ, यानी हमारे पास जो सीखेगा हम उससे वादा लेंगे, भाई तुम चाहे आप बाबा कोई प्रोफेशन से हो, घर में 5 बच्चों को पढ़ाइए। एक स्क्रिप्ट में हम 3 लैंग्वेजेस बता देंगे इंशाल्लाह। तूफान फानी एक भयानक शक्ल लेता नजर आ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 36 घंटे में खतरनाक तूफान आ सकता है। जुनूब मशरकी और जुनूब मगरिब में बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान आने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने 1 मई तक इस तूफान फानी के शुमाल मगरिब की तरफ से आने का अंदेशा जाहिर किया है। आपको बता दें कि तूफान फानी के पेश नजर ईस्टर्न नेवल कमांड का हाई अलर्ट जारी हुआ है। विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के आरकोनम में बहरिया को अलर्ट कर दिया गया है और बहरिया के एहलकारों को तैयार रहने को कहा गया है। मरकजी हुकूमत ने एनडीआरएफ के लिए 1086 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 225 करोड़ रुपए शामिल हैं। जिला कलेक्टर विजयनगरम में जवाहरलाल ने बताया कि फानी तूफान से विजयनगरम में भारी बारिश की पेशगोई की गई है। तूफान से निपटने के लिए और नुकसानात को कम से कम करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुमकिन इकदाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की रुख्सत मनसूख की गई है। शेल्टर तैयार किए गए हैं। माहीगीरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। पीने का पानी, दवाएं और खाना तैयार रहने की हिदायत दे दी गई है। नुकसानात को कम से कम करने की भी कोशिश जारी है। ఎస్డిఆర్ఎఫ్ కి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలని రప్పించుకోవడం జరిగింది. సో వాళ్ళందరూ కూడా మన జిల్లాలో ఇప్పుడే మరి క్యాంప్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా 23 మందితో ఒక టోటల్ టీం పనిచేస్తూ ఉంది. అలాగే 3-4 తేదీల వరకు తుఫాన్ ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి భారీగా అతి భారీగా వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయనేటువంటిది జిల్లా అధికారులందరికీ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశాం. అలాగే సెలవుల మీద ఎవరైతే పోయారో వాళ్ళందరికీ కూడా సెలవులు క్యాన్సిల్ చేసి మరి రిటర్న్ రావాల్సిందిగా మరి హెచ్ఓడీలకి జారీ చేయడం జరిగింది. మరి ప్రతి ఒక్క మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లో మండల స్థాయి అధికారులని, గ్రామాల్లో గ్రామ స్థాయి అధికారులని హెడ్ క్వార్టర్స్ వదిలి వెళ్ళొద్దని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే తుఫానుకు సంబంధించినటువంటి తీర ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి 2 మండలాల్లో పూస్పాట్రేగా, భోగాపురం మండలాల్లో ఉండేటటువంటి సైక్లోన్ షెల్టర్స్ అన్నీ కూడా రిపేర్ చేసుకొని రెడీ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ 2 మండలాల్లో అలర్ట్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. మత్స్యకారులని आंध्र प्रदेश में 5 मई को ग्रुप 2 इम्तिहानात के स्क्रीन टेस्ट होना है। इस सिलसिले में एपीपीएससी की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 400 से ज्यादा आसामियों के लिए 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। मगरबी गोदावरी में किसानों ने एहतजाज किया और गुजरात में किसानों पर आयद मामलों को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों पर फर्जी मामलों में केस दर्ज करके हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत कॉरपोरेट इदारों की हौसला अफजाई कर रही है। गुंटूर में विजिलेंस और पुलिस ने रियासत में ममनू गुटखा की तैयारी और फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने 25 से 30 लाख मालियती गुटखे के पैकेट्स और तैयार करने वाली मशीनों और केमिकल्स को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुटखे तैयार करने वाले अशिया को कर्नाटक से स्मगलिंग करके गुंटूर में तैयार किया जाता था और रातों रात इसकी सप्लाई की जाती थी। सीपीएम लीडर मोहम्मद गौसे देसाई ने करनूल में बायो टॉयलेट की तामीरात में हुई बेकायदगियों को मंजर आम पर लाने और इसकी जांच की मांग की। जिला कलेक्टर और बल्दिया कमिश्नर से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लेकर गैर जरूरी मकामात पर बैतुल खला तामीर करके आवाम का रुपया कसीर मिकदार में खर्च किया गया है। कायम करे हैं, इसका कुछ भी आम लोगों का, पब्लिक का कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि कहाँ जरूरत है कि कहाँ गरीब लोग हैं कि वहाँ टॉयलेट नहीं बने सरकार रोडां पर। और
सैयद निजामुद्दीन जिला करनूल स्टेशन मास्टर साउथ सेंट्रल रेलवे 34 साल खिदमत के बाद अपने ओहदे से रिटायरमेंट हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे के आला ओहदेदारान ने शिरकत की और सैयद निजामुद्दीन के खिदमात को सराहा। स्टेशन मास्टर कुमार ने सैयद निजामुद्दीन की सताइश की और कहा कि निजामुद्दीन हमेशा अपने ओहदे के साथ इंसाफ किया। जिला करनूल के डोन में जरी मार्केट के पास बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।